नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। सागा, सैफ अली खान ने बोल दिया है। क्या बोल दिया है? Well, he said that the heroes in Bollywood pull in more crowd to the theaters than the heroines. What nonsense! अरे he also spoke about heroines getting paid less. ऐसा बोला सैफ ने? कहां? इंटरव्यू में या कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल में? Where exactly has he said this? Well, Saga, you don't get so hyper. सैफ ने ये Zoom के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोला है। चलो मैं तुम्हें टॉप स्टोरी दिखा देता हूँ। दिखाओ दिखाओ, मैं भी देखूं क्या बोला है, कहां बोला है। Planet Bollywood. It's not that I have more than 365 days in life. What they pay us is not justified. It's just almost like peanuts, you know. It's not justified at all. All the commercial films, even internationally, men get paid more in Hollywood, Bollywood, everywhere. कंगना रनौत और सोनम कपूर की इस कंप्लेंट पर सैफ ने खड़े कर दिए हैं सवाल। I mean, you know, it's a very economically fair business. सैफ ने एक्ट्रेसेस की फी कम मिलने की शिकायत को बता दिया है गलत। But it is male dominated because the big male heroes, Salman Khan or somebody, take 30-35 crore openings, you know, and there's no girl who can do that. दीपिका से लेकर प्रियंका और सोनम कपूर की ज्यादा फी की डिमांड सैफ को नहीं लगती लॉजिकल। Some girls have hit films, some films run, but generally speaking, when they do a film, it has to open like that also. If it does, then they'll get paid. जी हाँ, सैफ अली खान ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एक्ट्रेस की ज्यादा फी की डिमांड पर सवाल खड़ा कर दिया है। सैफ ने साफ कर दिया है कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स स्टार्स की वैल्यू के हिसाब से पैसे लगाते हैं, लेकिन जब जूम ने सैफ के इस स्टेटमेंट पर उनकी को एक्ट्रेस कटरीना कैफ से बात की तो उन्होंने सैफ के बयान से अग्री होने से इनकार कर दिया। Recently I met Saif and Saif said that when we talk about remunerations, that female actors should get paid more. Saif Ali Khan said that they should not get paid more. Why did he say that? Yeah, Where is he? Call him here. He obviously meant it as a joke. No, the reason he gave behind is that if you cast a Khan or if you cast a big star, they are able to pull the crowd, which gives you a 25 to 30% guaranteed collections. But it is not the same with female actors. So what is your perspective and what is your perspective on the same? I think those equations are all changing. I think it's a question of what kind of story you're attempting to do. Yes, there are certain films for which you would need one of the big Khans to come in and pay them whatever they charge. But there are lots of stories that today you can do which can be top-lined by an actress. यही नहीं, कटरीना ने बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर्स को एक सलाह भी दे दी है। It should be appropriate as per the film. So if your lead actor is a female and this is your budget, she should be paid according to that. वैसे कटरीना की इस बात से खुद फैंटम फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान भी इत्तेफाक रखते हैं। There are lots of stories that today you can do which can be top-lined by an actress, and therefore if it is being top-lined by an actress, they should be paid whatever is due for the actors. Well, कबीर, कटरीना कैफ की इस बात में दम तो है, लेकिन बीइंग अ फिल्म प्रोड्यूसर सैफ अली खान की बात भी सही है। आखिर कोई प्रोड्यूसर फिल्म में पैसा प्रॉफिट के लिए लगाता है, ना कि लॉस के लिए। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। Katrina Kaif finally spoke about her relationship. सागा, कुछ मत बोलो यार, इतने सालों तक नहीं बोला तो अब क्या? अरे seriously, I have it exclusive. Exclusive? Yeah. Okay, fine. Now I kind of believe you, but exactly क्या बोला? But why didn't you believe me the first time? अरे वो छोड़ो ना, स्टोरी दिखाओ। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले बताओ क्यों नहीं बिलीव किया? सागा, let it be ना, just show me the story. अब तो पहले तुम मुझे बताओ, फिर ही मैं स्टोरी प्ले करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, मैं अपने आप स्टोरी देख लूंगा। Planet Bollywood. जूम के साथ कटरीना ने बांटा अपना दर्द। हमेशा अपने रिश्ते को छुपाने वाली कटरीना ने पहली बार खोले दिल के राज। आपको बता दें कि कटरीना कैफ से जब भी रणबीर के साथ रिश्ते के बारे में पूछा गया, उन्होंने किया इसे अवॉइड। ऐसा मत करो, भाई साहब, प्लीज ऐसा मत करो। इनफैक्ट रणबीर के साथ फोटो क्लिक करवाने में भी उन्हें हुआ ऑब्जेक्शन। अब बंद कीजिए। पर आज जूम खुद कटरीना की जुबानी आपको बताएगा कि आखिर क्यों अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों पर गुस्सा हो जाती है कटरीना। I do feel that we should, and I think we should all make an effort to try and respect the actor, respect the woman who is on the platform in front of you in the capacity of which she is there.
Acting is a profession. It's our profession. We're not just playing silly games and roaming from party to party, being upset with other people. And I mean, I for one would really like to see that happen, and it does happen with me a lot. And I think people should stick to just professional questions. And I mean, there's no need. Like I don't ask the interviewer in front of me something personal. सुना आपने, खुद से पर्सनल सवाल पूछे जाने पर क्या कहा कटरीना ने। अब आपको ये भी उनसे सुनवाते हैं कि रिलेशनशिप में रहने के बावजूद वो हमेशा क्यों कहती हैं आई एम सिंगल, और जब कोई उन्हें रणबीर की गर्लफ्रेंड का टैग देता है तो क्यों आता है उन्हें गुस्सा। Actually, because with me this has happened a few times. What really makes my blood boil is we have Indian press conference. It has all the time. What not press conferences, but often in newspapers when you read, what really gets me super angry is when someone refers to you as so and so's girlfriend, or so for example, if Kabir is my boyfriend, or Katrina Kabir's girlfriend, whoever it is. When they refer to a girl as someone's girlfriend, that's not a profession. And especially people who are well known in their chosen field, like it just shocks me. I'm like, after 9 years of whoever it is, if I'm speaking about myself, or however many years of hard work and luckily by the grace of God, successful work and work which is done really well, you're referring to a successful professional as somebody's girlfriend, and then we're talking about equality for women and men. I mean, it has to start somewhere. It should start with us. कटरीना की इन बातों से साफ हो जाता है कि क्यों वो रखती है अपनी पर्सनल लाइफ को इतनी पर्सनल। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। You heard what Aishwarya did? Aishwarya Rai Bachchan? Who else? Silly, of course. What did she do? You really don't know? No, Tishe, I don't know. Okay, चलो ठीक है, मैं तुम्हें directly story दिखा देता हूँ. But I don't think she should have done that. Please show us the story. It's not. Anyway, watch it. Planet Bollywood. ऐश्वर्या ने करवाया मीडिया को घंटों इंतजार, लेकिन इस लंबे इंतजार के बाद भी ऐश्वर्या ने नहीं किया मीडिया से कोई इंटरैक्शन। Well, yes, एक रियलिटी शो के सेट पर ऐश्वर्या फिल्म जज्बा को प्रमोट करने इरफान खान के साथ आने वाली थी। इस बात की जानकारी पहले ही मीडिया को दे दी गई थी। तय समय के मुताबिक मीडिया उस रियलिटी शो के सेट पर पहुंच गई, जहां ऐश्वर्या और इरफान खान फिल्म जज्बा के प्रमोशंस के लिए आने वाले थे। यहां पहुंचकर घंटों इंतजार करने के बाद ऐश्वर्या इरफान के साथ वहां आई और शटरबग्स के लिए भी किया पोज। लेकिन जब बात आई मीडिया इंटरैक्शन की तो ऐश ने कर दिया साफ इनकार और रीजन दिया कि वो जल्दी में हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और जाना है। ऐश्वर्या के इस इनकार के बाद रियलिटी शो के सेट पर मौजूद पीआर टीम ने उन्हें काफी मनाने की कोशिश की भी, लेकिन ऐश ने किसी की भी एक न सुनी और अपने डिसीजन पर कायम रहते हुए बिना मीडिया इंटरैक्शन के वहां से चली गयी। वेल, ऐश्वर्या के इस बिहेवियर ने वहां मौजूद न केवल मीडिया को बल्कि पीआर टीम को भी कर दिया हैरान। खैर, ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अपनी कमबैक फिल्म के पहले प्रमोशन स्केड्यूल से ही मीडिया इंटरैक्शन को स्किप करना कोई ठीक बात नहीं है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। यार फरहान अख्तर तो बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा, for what? रॉक ऑन 2 के लिए। Why? What's he doing? You don't know? रॉक ऑन 2 की स्क्रिप्ट ही चेंज करवा दी। हाय ला, पूरी की पूरी? नहीं। तो फिर स्टोरी देखो, कितना सवाल पूछते हो तुम। Planet Bollywood. Multi-talented Farhan Akhtar is leaving no stone unturned to guarantee a box office hit with Rock On sequel. Zoom की sources से exclusive खबर मिली है कि फरहान ने Rock On 2 की स्क्रिप्ट में करवाए हैं काफी changes. Sources revealed that apparently फरहान स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे और इसीलिए फरहान स्क्रिप्ट राइटर से तब तक changes करवाते रहे till the time he was satisfied. Sources also added that Farhan is doing so to make sure कि Rock On 2 ओरिजिनल जितनी ही इंटरेस्टिंग हो और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सके। Well, must say, Farhan is going all out to make the sequel of a blockbuster. अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि फरहान की ये कोशिश कितनी कामयाब रहती है। For कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। Guess who I've got next? Who? Jacqueline Fernandez exclusive. Whoa, you are a rock star. अच्छा, अब मैं रॉक स्टार बन गई। अब तुम्हें स्टोरी तब दिखाऊंगी if you promise me कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ये this is not fair यार। Fair or not, मुझे गिफ्ट चाहिए if you want to see the story. तुम नहीं मानोगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ लाके दूंगा। अब तो मैं स्टोरी देख सकता हूँ प्लीज? Of course.
Planet Bollywood. रेमो डिसूजा की फिल्म द फ्लाइंग जट में हमें नजर आएगी एक फ्रेश जोड़ी और वो है जैकलिन फर्नांडिस और टाइगर श्रॉफ की। और अपनी इसी फिल्म के बारे में जैकलिन ने जूम से की एक्सक्लूसिवली बात। I think like I've wanted to work with Remo for the longest time because I've just seen his work and he's got this really young, fresh feeling about his movies. And Tiger, ever since I saw him in Hero Panti, he's only one movie old, but he's made such an impact on the industry. And him and me have a similar passion for stunts and acrobatics and gymnastics. So, which is why, we have a lot in common. We're able to, kind of bond on those two things. And hopefully, we'll be doing some amazing, amazing stuff together in Flying Jet. जैकलिन तो काफी एक्साइटेड हैं to perform stunts with Tiger in this film. और जैकलिन के साथ-साथ ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड है to see this fresh pair on screen. Hope the chemistry does wonders at the box office. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Tishe, I think something is brewing between Huma Qureshi and Amit Saad. What do you mean by something? Well, मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती हूँ, but मैंने सुना है Huma and Amit are spending a lot of time together. सागा, I'm sure किसी फिल्म के सिलसिले में होगा. Nope, ना पहले कोई फिल्म की है, ना कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है. Oh. Planet Bollywood. Actress Huma Qureshi and actor Amit Saad are making some heads turn with their closeness these days. Zoom की sources से पता चला है कि हुमा और अमित एक साथ आजकल काफी quality time spend करते हुए अक्सर नजर आते हैं. The two are often spotted in film theatres and at overnight cafes enjoying a cup of coffee. Well, not having worked together in a film yet, we wonder whether Huma और अमित की friendship क्या B-Town का एक नया culture है, or there is something that we are still not aware of. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Saga, I have a story on Sanjay Dutt. Oh, nice. I haven't heard about him in a while. What is it? Well, how can you forget? मैं हर स्टार की खबर रखता हूँ. Yeah, show off. अब स्टोरी बताओ. सागा, ब्रेक के बाद बताऊँ? Actually, मेरी एक अपडेट आना बाकी है, please. Yeah, right. तुम्हारे पास स्टोरी तो होती नहीं पूरी, but show off करना है ना? Whatever. Guys, सागा मुझे समझेगी नहीं, but you guys take a short break and come right back क्योंकि ब्रेक के बाद बताऊँगा संजय दत्त की स्टोरी. I swear. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ सागरिका. और मैं हूँ तिशे. And you're watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. तो तिशे, आ गया तुम्हारा अपडेट. रेडी है तुम्हारी स्टोरी? सागरिका, वैसे मेरी स्टोरीज हमेशा रेडी होती है. हाँ, अब डायलॉग मारना बंद करो. शो ऑफ भी बंद कर दो. Tell us the story. Okay, so the news is that Sanjay Dutt will be out on parole. For how long? Initially 30 days के लिए, but it might get extended. But on what grounds? On those grounds? Planet Bollywood. संजय दत्त एक बार फिर आएंगे जेल से बाहर. संजय दत्त की पैरोल की रिक्वेस्ट हो गई है मंजूर. 30 दिनों के लिए आएंगे संजू बाबा जेल से बाहर और सब सही रहा तो ये पैरोल 3 महीने तक हो सकती है एक्सटेंड. दरअसल संजय दत्त ने इस साल जून में पैरोल के लिए एप्लीकेशन दी थी. संजय ने अपनी इस रिक्वेस्ट में कहा था कि उनकी बेटी की नो सर्जरी होनी है जिसके लिए वो पैरोल पर बाहर आना चाहते हैं. और एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो संजय की पैरोल रिक्वेस्ट को अब एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब इस पैरोल को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी होती दिख रही है. लॉयर आभा सिंह ने संजय को मिले इस पैरोल पर सवाल खड़ा कर दिया है. बहुत हैरानी हो रही है कि इनको कैसे बार बार पैरोल मिल जाता है, पैरोल के साथ फरलो एक्सटेंड कर दिया जाता है. संजय दत्त को अब तक 111 दिन का पैरोल और फरलो मिल चुका है. कई कैदियों ने हाई कोर्ट में पिटीशन भी की कि हमारे को एक बार भी नहीं मिला है. 4 से 5 साल से वो जेल में है, लेकिन बाकी कैदियों की पैरोल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है. और पिछली बार संजय दत्त को पैरोल दिया गया था तब उनकी मान्यता की बीमारी के लिए, और उस वक्त वो पार्टी कर रही थी. और जब पूछा गया कि क्या पुलिस वालों ने इंक्वायरी करी थी, रिपोर्ट ली थी, तो कोई पुलिस वालों का ने कोई सही जवाब नहीं दिया. और उस इंक्वायरी का भी आज तक पता नहीं चला कि कैसे इनको पिछली बार दे दी गई थी. यही नहीं, आभा सिंह ने संजय दत्त की लास्ट पैरोल कंट्रोवर्सी पर हो रही इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठाया. देखिए, पिछली बार जब इनको बोला गया कि टीवी पे इन्होंने देख लिया कि इनको आपको जाने की जरूरत नहीं है और संजय दत्त बिना सरेंडर किए लौट आए, और बाद में हुआ कि इंक्वायरी ऑर्डर की गई, लेकिन आज तक उस इंक्वायरी का सामने लाया नहीं गया. तो बिल्कुल डिविजनल कमिश्नर की ने किस बेसिस पे ये अप्रूवल दिया है, उनको पैरोल दी है. डिविजनल कमिश्नर
ने क्या अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, क्या पुलिस ने लोकल बॉम्बे पुलिस से अप्रूवल दिया है कि नहीं, ये सब पेपर्स की जांच होनी चाहिए। वेल, साफ है संजय दत्त को भले ही पैरोल मिल गया है, लेकिन इस बार भी संजय कंट्रोवर्सी में फंसते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान, प्रियंका, आलिया, श्रद्धा, क्या हुआ इन सबको? वेल, सब इनके सिंगिंग टैलेंट से इम्प्रेस्ड है, राइट? Have you just woken up? Of course, everyone loves them. And honestly, I love Salman's new song. Oh, sorry. तुम अपनी स्टोरी बता रहे थे. Yeah, so everyone loves when they sing. But Aishwarya Rai Bachchan? What about her? She has something else to say. Really? जब बोल रहा हूँ तो झूठ थोड़ी ना बोलूंगा सागा. What really? हाँ, चलो अब स्टोरी दिखाओ. Okay, watch. Planet Bollywood. काफी सालों से actors have sung. It's just probably maybe it's not a new thing. ऐश्वर्या को नहीं लगता कि बॉलीवुड स्टार्स के सिंगिंग टैलेंट में है कोई बात, बल्कि ऐश्वर्या के मुताबिक तो जिस सिंगिंग टैलेंट को आज प्रियंका, सलमान, आलिया और श्रद्धा कपूर जैसे स्टार्स दिखा रहे हैं, ये सिंगिंग टैलेंट तो बहुत पहले ही ऐश्वर्या के पा यानी फादर इन लॉ अमिताभ बच्चन दिखा चुके हैं। पिछले कुछ एक सालों में कई सारे एक्टर ने गाना भी गाया है, लाइक आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, सलमान खान। काफी सालों से actors have sung. It's just probably maybe it's not a new thing. Actors have been singing for, I mean, Pa has been singing forever, so it's not a हाल ही में लोग actors are singing. वेल, ऐश्वर्या यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने तो सभी में सिंगिंग टैलेंट ना होने तक की बात कह दी। Actors are singing. It's probably getting obviously a lot more. It's we're trying to probably do what's natural to everybody anyways, and like I said, we all sing. आप भी गाते हैं, आप भी गाते हैं, आप भी गाते हैं, because we've all loved our cinema music. वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि अपने पा यानी अमिताभ की तरह ऐश भी कभी अपनी किसी फिल्म में सिंगिंग करती नजर आ सकती हैं, तो हम आपको बता दें कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। कुछ इरादा हमें इस फिल्म में या इन फ्यूचर हमें कुछ गाने आपके जुबान से सुनने को मिलेंगे, बिकॉज पिछले कुछ एक सालों फिलहाल जज्बा के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के प्लान्स फ्यूचर में ही बात कर लेते हैं। चलिए ऐश्वर्या, भले ही आप फिलहाल सिंगिंग के मूड में ना हो, लेकिन बाकी स्टार्स के सिंगिंग टैलेंट को भी आपको वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए जैसे कि आप अपने पा के टैलेंट को करती हैं। फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सागा, शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। ये धीरे बोलो, धीरे। क्यों, क्या हुआ? Well, Shatrughan Sinha is getting trolled on Twitter. अब क्या हुआ? Well, he said something about a political party that didn't go down well. Oh, फिर तो मैं खामोश हो जाती हूँ। Exactly, वरना तुम्हें भी ट्रोल कर देंगे। Planet Bollywood. शत्रुघ्न सिन्हा हो रहे हैं ट्विटर पर ट्रेंड। जी हाँ, रिसेंटली शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ट्वीट किया। बस फिर क्या था, एक गलत बात एंड दैट्स इट। शत्रुघ्न गॉट ट्रोल्ड ऑन ट्विटर। सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए और शत्रुघ्न के अगेंस्ट कुछ ऐसे ट्वीट्स करने लगे। आई थिंक शत्रुघ्न सिन्हा वांट्स टू बी द प्रेसिडेंट। व्हाट ही विल टीच खामोश टू द स्टूडेंट्स। Everybody knows Shatrughan Sinha is a dried spring, no water, useless for any party. अब हो गया है खामोश। Can anyone dig out the details of what Shatrughan Sinha has done all these years? I bet there won't be anything significant. नाम के नेता। LOL. Shatrughan Sinha, nobody punishes a fool. Does anybody punish duffer Rahul ji? Well, नेगेटिव पब्लिसिटी ही सही, पर शत्रुघ्न सिन्हा के अगेंस्ट ये ट्वीट्स बन गई हमारी ट्रेंडिंग स्टोरी ऑफ द डे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। तुमने अनुराग कश्यप की स्टोरी सुनी? या बेचारे अनुराग का काफी मजाक बन रहा है। हाँ यार, खुद की प्रैंक खुद पर ही भारी पड़ गई। और नहीं तो क्या, मीडिया के साथ प्रैंक करना वेल सबके बस की बात नहीं। चलो सागा, ऑडियंस को दिखाई देते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। Absolutely. Guys, watch the story and enjoy. Planet Bollywood. अक्सर खबरों में रहने वाले अनुराग कश्यप ने फिर से बनाई है सुर्खियां। अनुराग ने मीडिया के साथ किया मजाक। दरअसल हाल ही में अनुराग ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी एक पिक्चर पोस्ट की और इस पिक्चर में उनकी आंख पर पट्टी नजर आ रही थी और पिक्चर के बारे में अनुराग ने लिखा था कि उन्हें ये चोट एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर से फाइट के दौरान लगी। अनुराग रोट, "Now they put a plaster. This is what happens when you get into a brawl with a MMA fighter."
और जब कुछ न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स पर अनुराग की चोट की खबर आई तो अनुराग ने मीडिया को ही क्रिटिसाइज करते हुए किया ये ट्वीट। One Instagram picture of prosthetics test for the eye with a random line becomes news without cross-checking. Point proven. Won the bet. लगता है कि इस पूरे प्रैंक के चक्कर में अनुराग ये भूल गए कि उन्होंने खुद अपनी ये पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें MMA फाइट के दौरान चोट लगने की बात भी उन्होंने खुद लिखी थी। और मीडिया पर इल्जाम लगाने से पहले अनुराग को ये सोचना चाहिए कि जो वो दिखाएंगे मीडिया तो शायद वही बिलीव करेगा। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। कितना शो ऑफ करते हो तुम? अरे मैंने क्या किया यार? कितना ड्रामा। But it is important for... आज के पूरे शो में इतनी नौटंकी ना, बाकी की स्टोरीज कल देते। Anyways, time up हो गया। So guys, on that note, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more updates at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.